صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, tahaddu tahabbu, meaning give gifts to one another, love and unity will be built between you. Allah Ta'ala is Al-Wahhab, the one who continually bestows gifts and favors and mercy and success upon all of his creation, the one who gives freely and endlessly. His gifts are unmatchable, the one who gives whatever he wills to whomever he wills, the one who dispenses his bounties universally and perpetually, freely and without constraints, seeking no compensation. We cannot give Allah Ta'ala anything in return for his gifts. Al-Wahhab, कसरत से देने वाला, continuously देने वाला, नवाजिश करने वाला, अल्लाह ताला जिसकी तमाम अता तमाम मखलूक के लिए आम हो, जिसको जो चाहे नवाज दे। अल्लाह ताला की गिफ्ट्स में रिस्क देना, हिदायत देना, शिफा देना, जो कुछ हमारे पास है अल्लाह ताला का दिया हुआ ही है। ये नाम अल्लाह ताला का कुरान में 3 दफ़ा आया है, मगर अल्लाह ताला के बेशुमार तोहफ़ों का ज़िक्र कुरान में हर जगह है। वहाब का मतलब है बहुत ज़्यादा हिबा करने वाला, एहसान करने वाला, अतिया करने वाला। ये फ़ाइल के वज़न पे है, यानी कि कंटिन्यूसली बार बार कोई काम करने वाला। और इस वर्ड में मुबालगा है अल्लाह ताला के इस नाम में, अल-वहाब, इसमें मुबालगा है, यानी कि बार बार गिफ्ट्स करने वाला। और अल्लाह ताला के ही हाथ में तो हर चीज़ के ख़जाने हैं। दुनिया और आसमान के तमाम ख़जाने अल्लाह ताला के हाथ में हैं, और अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से बेइंतहा अतिया करते हैं। Allah Ta'ala gives all kinds of favors to all of his creation. He gives them constantly, generously and endlessly, without any exception, without expecting anything in return. None can prevent him from giving anything. He can give whatever he wants. No one knows what he has to give. And Allah Ta'ala is able to give everything. He gives to those who deserve, और उनको भी अल्लाह ताला देता है जो deserve नहीं करते। If you have someone who guides you to Allah, who tells you about Allah, if you have someone who teaches you, someone who gives you advice, someone who gives you knowledge, that is also a gift from Allah. When Allah makes it easy for you to do good deeds, that is also a gift from Allah. Salih Aulad, a righteous child, is a gift from Allah. A righteous spouse is a gift from Allah. A good house is a gift from Allah. A loving family is a gift from Allah. जब भी कुरान में औलाद का ज़िक्र हुआ है, तो the word that is used for it is hiba, and the best hiba is hidayah. Hidayah is the best gift of Allah. अल्लाह ताला के रसूल, अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला के इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए कुरान की बहुत सारी दुआओं में ये अल्लाह ताला का या तो ये नाम आता है या गिफ्ट्स मांगने की बात है। For example, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कहते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. O our Lord, let not our hearts deviate after you have guided us, and grant us from yourself mercy. Indeed, you are the bestower. और फिर सूरह आल इमरान में ही ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, जब उन्होंने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी, in his old age, he called upon his Rabb with conviction that Allah Ta'ala can grant him this gift of a child, even though he's old. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Zakaria called upon his Lord, saying, My Lord, grant me from yourself a good offspring. Indeed, you are the hearer of supplication. और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी तरह अल्लाह ताला ने ओल्ड एज में औलाद दी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अला किबरी इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ. Praise to Allah who has granted to me an old age, Ismail and Ishaq. Indeed, my Lord is the hearer of supplication. और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल रब्बि ग़फ़िर ली
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. This was a special gift for Sulaiman alayhi salam. This was a dua that he made, and this was granted to him specially. So we're not allowed to make this dua. कि ऐसे कोई मौज़े मांगने इस तरह का कोई मिरेकल मांगना हमारे लिए it is not allowed because this is considered transgression in law. जब हम कोई गिफ्ट देते हैं तो how is it different from the gifts that Allah Ta'ala gives? जब अल्लाह ताला कोई गिफ्ट देता है तो we cannot put any value on it. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मच आर आर आइज़ फॉर, हमारी आइज़ की क्या कीमत है, हमारे बच्चों की क्या प्राइस है, हम क्या उस पर कोई कीमत लगा सकते हैं? जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसकी कोई प्राइस वैल्यू होती है? जो फेवर अल्लाह ताला हमें हमारे लिए करते हैं हम उसको कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते, मगर जब हम किसी के लिए कोई फेवर करते हैं तो वो उसका रिटर्न दे सकते हैं. फिर वी मस्ट एक्सेप्ट एंड बी ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट दैट अल्लाह ताला गिव्स अस. मगर जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हो सकता है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं फ़ील हो, हमारे लिए वो काम की चीज़ नहीं हो, और इसीलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो चीज़ हमें ज़रूरत की नहीं लगती है हम उसको री गिफ्ट भी कर देते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं होता है. फिर जब अल्लाह ताला हमें कोई गिफ्ट देता है तो वो वही चीज़ होती है जिसकी एग्जैक्टली हमें ज़रूरत होती है. मगर जब हमें कोई गिफ्ट देता है या हम किसी इंसान को गिफ्ट देते हैं तो हो सकता है हम उनको कोई ऐसी चीज़ दें जिसकी उनको कोई ज़रूरत ना फ़ील हो या बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो. अल्लाह ताला हर किसी को गिफ्ट देते हैं. ही गिव्स टू एवरीबडी. वी ओनली गिव टू पीपल दैट वी नो. अल्लाह ताला गिव्स कॉन्स्टेंटली. वी आर लिमिटेड इन आर गिविंग. ना भी अल्लाह ताला दे, इट डज़ नॉट डिमिनिश हिज ट्रेजर्स. अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं होती है, चाहे अल्लाह ताला जितना भी हमें नवाजता रहे. मगर हमारा एक बजट होता है, हम एक लिमिट के अंदर ही खर्च कर सकते हैं, एक लिमिट के अंदर ही गिफ्ट कर सकते हैं. और जो गिफ्ट अल्लाह ताला ने किसी से रोक लिया, इफ़ ही withholds a gift then no one else can give it. कोई और नहीं दे सकता फिर वो. अगर हम किसी से कोई चीज़ रोक लें तो कोई दूसरा दे सकता है उन्हें. Every single gift is from his wisdom. We cannot compare our gifts to Allah's gifts at all. कुरान में जो गिफ्ट्स मेंशन हुए हैं उसमें बच्चे, औलाद, फैमिली, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, जैसे कि मूसा और हारून. मूसा अलैहिस्सलाम asked for this gift and Allah Ta'ala granted it to him, and he talks about this in the Quran. फिर wisdom is a gift, prophethood is a gift from Allah, and guidance is a gift of Allah that is mentioned in the Quran. How to live by this name? Do not take any blessing for granted or think that you deserve it. Express happiness and gratitude to appreciate Allah's blessings. अल्लाह ताला के किसी भी गिफ्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए. फिर यूज़ द गिफ्ट्स दैट अल्लाह ताला हैज़ गिवन यू टू सर्व अल्लाह's दीन एंड टू प्लीज़ हिम. अगर अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया है, औलाद दी है, टाइम दिया है, नॉलेज दी है, विजडम दी है, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है उसको इस्तेमाल करना चाहिए अल्लाह ताला के दीन को सर्व करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए. चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह. तो बी फेयर टू योर चिल्ड्रन एंड रेज देम वेल. ऐसे रेस करें आप अपनी औलाद को जो कि आपके लिए आगे चल के सदका जारिया बने. टीच देम दीन, उनको दीन का इल्म दें, उनको कुरान सिखाएं, उनको अच्छे अखलाक सिखाएं, उनको अल्लाह ताला के नाम बताएं, उनको अल्लाह ताला से मोहब्बत करना सिखाएं. फिर डू नॉट प्रेज योर सेल्फ, एट्रीब्यूट ऑल द सक्सेस एंड एवरीथिंग गुड टूवर्ड्स अल्लाह. जो कुछ भी हमारे पास अल्लाह की वजह से है, जो कुछ भी हमें दिया है अल्लाह ने ही दिया है. इट इज़ नॉट फ्रॉम अस, इट इज़ फ्रॉम अल्लाह. फिर डू नॉट बिकम ओवरली अटैच टू द गिफ्ट बट लव द गिफ्ट गिवर. जिसने गिफ्ट दिया है, जिसने वो तोहफ़ा दिया है उसकी कदर करें और इतना ज़्यादा उस गिफ्ट में, उस औलाद में, उस घर में, उस पैसे में, उस एबिलिटी में, उस जो भी गिफ्ट अल्लाह ताला ने दिया है उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं करें कि आप जो गिफ्ट देने वाला है अल वहाब उसको भूल जाएं. रिमेंबर यू हैव द गिफ्ट बिकॉज ऑफ द गिवर. Then use this name to make dua for yourself and for your family. Ask him freely. He does not hold back in giving, so don't hold back in asking. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Our Lord, grant us from among our spouses and offspring comfort to our eyes and make us the leader of the righteous.
Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.